A very, very, very good morning, all of you. Welcome back on this beautiful journey, and very, very happy and grateful to have all of you here and to be with all of you. Thank you, and let's begin. Let's begin the end of our creation process chapter, and we have Kanchu and Drishti here. Are we ready? Yes, perfect. All right, so I'll just bring the screen on. So excited for that. Can you see Kanchu screen? Yeah, yeah. So Yeah. we did the creation of heavens and earths to begin here. Drishti. The creation of the heavens and the earth and everything in them was complete. Genesis 2, 2:1. What that means for you and your life is that whatever you can imagine for yourself in your life already exists. It's impossible for you to imagine anything that doesn't exist. Creation is complete. Every single possibility exists. So when you imagine breaking a world record or traveling to Far East or being full of health or being a parent, those possibilities of you doing those things exist in creation right now. Okay. If they didn't exist already, you would not be able to imagine them. To bring the things you desire and love from the invisible into your visible life, all you have to do is give love for what you want through your imagination and feelings. Imagine your life the way you want it to be. Imagine everything you want. Take your imagination with you every day and imagine what it would be like if your relationships were all wonderful. Imagine how you would feel if your job suddenly took off. Imagine how your life would be if you had the money you need to do what you love. Imagine how you would feel if you were overflowing with health. Imagine how you would feel if you could do what you wanted to do. Use all your senses to imagine what you want. If you want to travel to Italy, imagine the smell of olive oil, taste the pasta, hear the Italian words being spoken to you, touch the stone of Colosseum, and feel being in Italy. Yes, Drishti. Thank you. So, as Drishti said, like we just started off with that where we left off yesterday, कि उन्होंने बोला कि जो भी हम जो सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यू नो हमारी सोच ही हमारी सीमा है, लाइक आवर इमेजिनेशन इज द लिमिट, राइट? वी से स्काई इज द लिमिट. तो इट इज ऑल अप टू अस कि हाउ मच वट एवर यू कैन इमेजिन. तो when we have that, whatever you can imagine, then might as well imagine what you want, right? Of course, it's easier to, sometimes, जैसे वो उनकी लास्ट स्टोरी थी, राइट? द डॉग विच गॉट लॉस्ट. तो इट इज सो इजी एंड सो ह्यूमन फॉर एवरीवन टू इमेजिन कि समथिंग बैड मस्ट हैव हैपेंड. अंधेरा है, रात है, माउंटेन्स है, न्यू प्लेस है. सो यू आर ऑलरेडी इमेजिनिंग, इवन इफ इट्स अ नेगेटिव पॉसिबिलिटी. सो वेन नाउ दे आर सेइंग कि जो भी आप सोचोगे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. Yeah, I remember this, like when even when I was a child, when I did not have these tools, जब मुझे ये सब चीजें पता भी नहीं थी, इतनी समझ भी नहीं थी, तो मुझे ना बचपन में हमेशा लगता था स्कूल में जब हम लोग के पेपर्स चेक होते थे, एग्जाम पेपर्स, तो टीचर वो बैठती थी चेयर पे, टेबल पे, और ऐसे वो बंच ऑफ पेपर्स होता है जिसपे हर एक का रोल नंबर लिखा हुआ है. तो आई लाइक मैं इतना अकेडमिकली ब्रिलियंट भी नहीं थी और इतना बैड भी नहीं थी. पर मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर 50 मार्क्स का पेपर है और समझो मैंने 40 मार्क्स का ही आंसर किया है, बट मुझे उम्मीद है कि मुझे 40 के ऊपर मिले, राइट? तो ऑफकोर्स आई एम विशिंग फॉर समथिंग. तो दिमाग बोलता था लिखा ही 40 का है तो उससे तो कम ही मिलेगा ना, चलो 40 40 का आपने लिखा है, 40 के 40 भी राइट है तो 40 से ऊपर तो नहीं मिलेगा. तो मैं ना इमेजिन करती थी कि नहीं,
जब तक वो पेपर उल्टा पड़ा है टीचर के डेस्क पे, जब तक मैंने आंसर नहीं दे, मेरे को मार्क्स टीचर ने दिखाए नहीं है, तब तक कुछ भी हो सकता है. लाइक नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई एम लाइक वाओ, आई वाज सो विशफुल इन लाइफ. बट ऐसा हुआ है एक बार जेन्युइनली ऐसा हुआ है कि मुझे समझो मैंने 40 का आंसर किया और मुझे 44 मिला है. तो लॉजिकली तो पॉसिबल ही नहीं है, आंसर अपने आप तो कोई लिख नहीं देगा अंदर. तो मैंने देखा टीचर ने एक आंसर के लिए मेरे को डबल मार्क्स दिए थे. ऑफ कोर्स आई वेंट एंड करेक्टेड दैट, बट लाइक इमेजिनिंग दैट वाज सो पावरफुल एंड इवन मेकिंग इट हैपन, भले गलती से ही सही पर वो 40 के ऊपर आया. तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट सेज, कि जो आपको चाहिए आप वो इमेजिन करो. ऐसा नहीं सोचो कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है तो बहुत मुश्किल है. तो हम ऑलरेडी वही सोच रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो नहीं होगा. तो इट इज सेइंग दैट एवरी पॉसिबल एवरी पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट. बोलते हैं ना पैरेलल रियलिटीज है, कितनी सारी चीजें हैं. तो दैट बीइंग सेड कि जो आपको चाहिए मेक इट वेरी रियल. फॉर उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर आपको इटली जाना है तो यू स्मेल ऑलिव ऑयल, तो यू वुड इमेजिन योर सेल्फ हैविंग, आप एक कॉफी शॉप में बैठे हो, इटली में बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, इमेजिन दैट. देन यू आर मेकिंग इट मोर रियल. यू आर यूजिंग द टूल्स टू इमेजिन. एक बार मुझे याद है वन ऑफ द बुक्स अगेन वी हैड रेड, तो उसने बोला था ना विजुअलाइजेशन के बारे में. तो फॉर एग्जाम्पल एक ड्रीम होम की बात होती है कि हम इमेजिन करते हैं हमें कैसी लाइफ चाहिए, कैसा घर चाहिए. इफ दैट इज समथिंग यू नीड, राइट? आई डोंट नो व्हाई बट आई देयर वाज समथिंग अबाउट ड्रीम हाउस. तो मैंने ना 3-4 फोटोज निकाल के कोलाज बना के अपना वॉलपेपर ही वही रख दिया कि अ, क्या डेली बेसिस में हम लोग अपने कामों में रहते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम वो इमेजिन भी करें, टू गिव इट दैट पावर, टू गिव इट दैट फ्यूल. तो whenever I open the laptop for anything, तो even for a split second मैंने वो घर देखा, हमने हाँ this could be my home, this is my home. Imagine करते करते करते. तो even if you are staying in a villa for a vacation, तो वो कुछ टाइम के लिए तो आपका घर डेफिनेटली है. तो everything is possible. Don't limit your imagination. So it is saying imagine your life the way you want it to be. Every aspect, be it finance, be it work, be it relationships, जो चीज जैसी चाहिए आप इमेजिन करो बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. In conversations and in your thoughts, say, imagine if, and then fill in the rest of the sentence with what you want. If you are talking to a friend and they are complaining because their work colleague got a promotion and they didn't, help them by saying, imagine if the reason you didn't get that promotion is that you are being promoted to an even bigger role with way more money. Because the truth is that the possibility of your friend being promoted to an even bigger role with way more money already exists. And if they can imagine it and feel it, they can receive it. Atoms or elementary particles themselves are not real. They form a world of potentialities or possibilities rather than one of the things or facts. Use your imagination and create games so that you feel really good. Whatever you can imagine is waiting for you, fully created in the invisible, and the way to make it visible is to harness the force of love by imagining and feeling that you love. Yes, thank you, Deshri. Right. So it says in conversations and in your thoughts also, imagine if, and then fill the rest of the sentence with what you want. राइट? तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो और उन्हें एक प्रमोशन चाहिए था जो उन्हें नहीं मिला. तो आप उन्हें बोलते हो कि उससे अच्छा आपके लिए कुछ वेट कर रहा है, राइट? एंड somehow that is few things हम लोग लाइफ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. तो विथ माई सर्टन एज, विद माई सर्टन एक्सपीरियंसेस, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि क्लोज डोर्स आर ब्लेसिंग इन डिसगाइज. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं जब भी भगवान से प्रे करती थी ना, तो देखो बचपन में एक पेरेंट, माँ बाप, बच्चे हमको प्रे करना सिखाते हैं कि ये भगवान है, इनको आप ऐसे पूजा करो, ऐसे जल चढ़ाओ, करेक्ट? तो वो हमें सब सिखाते हैं.
तो एक एज आती है जब हम वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मे बी किसी फ्रेंड ने हमें क्वेश्चन किया, मे बी किसी टीचर ने हमें पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मे बी उनको आपका कल्चर या फेथ समझना है, राइट। तो वो एक एज तक मुझे याद है कि हम लोग सब जो माँ बाप बोलते थे चुपचाप करते थे, देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट। फिर आप समझते हो अच्छा मैं ये इसीलिए कर रही हूँ, राइट। तो फिर उसके बाद जो आपका बिलीफ है वो और स्ट्रांग होने लगता है, बिकॉज अब आपको पता है कि जो आप प्रे कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्यों, कि आपको क्या चाहिए, राइट। तो मुझे याद है बहुत टाइम तक मैं जब प्रे करती थी ना, तो मुझे कुछ मांगने से भी डर लगता था कि मुझे किस तरह वो मिलेगा, मुझे पता नहीं, क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ, मुझे पता नहीं। तो आई यूज टू फील स्केर्ड कि नहीं नहीं, आई वुड जस्ट से कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो माई मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर, शी मेड मी बिलीव इन थिंग्स, राइट। तो शी यूज टू ऑलवेज टेल मी, कंचू जो चाहिए ना स्पेसिफिकली मांगो, भगवान को और बहुत काम है, वो क्या सबका इमेजिन नहीं करेगा, आपको ये चाहिए आपको वो चाहिए, एग्जैक्ट जो चीज चाहिए वो मांगो। तो मैं बोलती थी मम्मी को, मुझे कैसे पता कि एग्जैक्ट मुझे क्या चाहिए। तो मम्मी ने कहा वो तो सिर्फ तुझे ही पता करना पड़ेगा ना, वो तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ। सिट विद योर सेल्फ और इमेजिन अगर आपको ये मिलेगा तो आपको कैसा फील होगा कि आपको ये मिला, राइट। एंड इमेजिन इट इन द वे यू वांट टू ऑल्सो रिसीव इट। सो दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम माई मॉम एंड देन फ्रॉम द बुक्स, कि जो आपको चाहिए बहुत स्पेसिफिकली इमेजिन करो दैट। एंड यस, जब कुछ चीज नहीं भी मिलती है कोई चीज, देन मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि क्लोज डोर्स आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड दैट you आई डोंट नो इफ यू guys have see that image कि एक छोटा बच्चा है ना, वो एक टॉय के लिए रोता है, तो भगवान उसको एक वो छोटा टॉय उससे मांगता है कि तू मुझे दे दे। तो वो बच्चा बोलता है कि आप मेरे से ले लोगे तो मुझे क्या मिलेगा, राइट। एंड पीछे भगवान के दूसरे हाथ में एक बहुत उससे 10 टाइम्स बड़ा टॉय होता है। तो they are showing that child is then giving that toy to god, because we don't know what is in store for us, कि हमारे लिए क्या है वो हमें अभी तक पता ही नहीं। So it says atoms or elementary particles themselves are not real, they form a world of potentialities or possibilities rather one of things for or facts। मतलब कि अगर आप देखने जाए तो कुछ भी रियल नहीं है, राइट। There have been days when I have been thinking ki is life is just a dream, we'll wake up and this is everything we just imagined it to be, right? So what is real, what is not real, again that is subjective, will not touch that topic right now। But point being, they're saying कि use your imagination as tool, like imagine करो जो चीजें आपको अच्छी फील कराती है कि मुझे ये मिल गया तो क्या, how would I feel। Now that is important because वो ऑलरेडी इनविजिबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज इमेजिन टू मेक इट विजिबल फॉर योर ओन सेल्फ। यस दृष्टि, यू कैन कंटिन्यू। After graduating from college, a young woman struggled for months and months trying to get a job. Her biggest obstacle was imagining having a job when she didn't have one. She wrote in her journal every day that she was grateful for the job that was coming to her, but still no job. Then she had a sudden realization. Her desperate actions of applying for one job after another was saying loud and clear to the law of attraction that she didn't have a job. So, here is what the young woman did that changed everything. She decided to use her imagination and live as though she were already employed. She set her alarm every early as if she were going to work. Instead of writing in her journal that she was grateful for the job that was coming, she wrote how grateful she was for her success in her job and for the people she worked with. She planned the clothes she would wear to work each day. She set up a savings account for her paychecks. Within 2 weeks, she felt as though she really had a job. Then, out of a blue, a friend told her about a position that had become available. She went for an interview, got the job, and received everything she had written about in her journal. थैंक यू दृष्टि। सो
दे आर टेलिंग अ स्टोरी, राइट? उसमें उन्होंने बोला है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग कॉलेज एक यंग वुमेन है जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही है। सो वो हर दिन जर्नलिंग भी करती थी, बट वॉट शी वॉज राइटिंग, वो लिख रही थी कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द जॉब दैट वॉज कमिंग टू मी। तो अभी तक आया नहीं है, इट इज कमिंग टू मी, तो द जॉब इज स्टिल कमिंग ओनली, इट्स नॉट कमिंग टू हर, राइट? So, like I previously shared, so we have to be very specific to what we want. So, we do not have to write in the process. Even Ashmin says that, कि you already imagine कि it has happened. So, that's exactly what she does. शी सेट्स अप हर पेइंग चेक अकाउंट, उसने अपने ऑफिस के कपड़े निकाल के रखे, उसने इमेजिन कर लिया कि उसने अपने अलार्म सेट करके रखे, कि इमेजिन किया कि मेरा ऑफिस चालू हो गया है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने अपने कॉलीग्स है, फ्रेंड्स है, शी इज इमेजिन एन एंटायर सिनेरियो what she wants it to be. And once that is done, you can see in the story that after 2 weeks, she felt as if she had a job. She's already started feeling it. She still doesn't have a job. उसको अभी तक लगी नहीं है, but she's already feeling it. Out of the blue, her friend told her about a position that became available, and the potato, right? It goes by the story ki she gets the job. I remember this, like, so I have two kids, right? In my first pregnancy was very difficult. There was this period कि जहाँ पे हमारे अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं, सो देर इज लाइक वेरी मेडिकल टर्म्स इन लॉट ऑफ थिंग्स. सो देर इज दिस थिंग कॉल्ड सर्विक्स लेंथ, तो विच इज सपोज टू बी 3 सेंटीमीटर. सो अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा होता है तो अगेन दैट इज समथिंग विच इज प्रॉब्लमैटिक एंड देन यू नीड टू गेट स्टिचेस. तो मेरा जब स्कैन आया तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि कोमल, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका सर्विक्स लेंथ कम है. हम फिर भी 1 महीना वेट करते हैं और देखते हैं कि, तो मैंने कहा मैम सर्विक्स लेंथ बढ़ सकती है कुछ ऐसे खाने से या कुछ करने से? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है. इट इज, अगर वो कम हुआ तो वो कम ही होता है, वो उसके बाद बढ़ता कभी नहीं है अपने आप. तो मैंने कहा ठीक है. तो मेरा सर्विक्स लेंथ था 2.9 सेंटीमीटर एंड इट इज सपोज टू बी 3. तो मुझे इतना कुछ नॉलेज था नहीं, तो मैंने खाली एक प्रिंट आउट निकाला. थैंक यू गॉड फॉर माई सर्विक्स लेंथ 3 सेंटीमीटर, थैंक यू गॉड फॉर बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट केयर, ऐसे 4-5 एफर्मेशंस निकाले. स्टार्टिंग में आई वॉज इन अ नेगेटिव जोन, आई विल नॉट लाई. मेरे हस्बैंड सागर, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रिंट आउट निकाल के देता हूँ और आपके बेड के सामने चिपका देता हूँ, जब आपको मन करे तब आप ग्रेटिट्यूड देना उसको. तो मैं बोलती थी कि उन्होंने चिपका के रखा था, तो ऑफ कोर्स देयर वर डेज मैं नहीं देखती थी. अब मुझे बेड रेस्ट था तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं था, आपको वो देखना ही है. तो दिन पे एक बार नहीं, कई बार मैं कैजुअली रीड करती थी, कभी समझती थी इसके जगह अच्छा फॉन्ट यूज कर सकते थे, थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा सकते थे, ये सब चीजें मैं देख के सोचती थी, बट जाने अनजाने मैं दिन में बहुत बार वो पेज देखती थी. और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सर्विक्स लेंथ बढ़ सकते हैं, राइट? तो यू कैन इमेजिन द स्टोरी में मैं नेक्स्ट क्या बोलूंगी. नेक्स्ट स्कैन में मेरा सर्विक्स लेंथ 3 सेंटीमीटर था. तो डॉक्टर ने बोला कोई जरूरत नहीं है आपको स्टिचेस की. तो सागर ने बोला, डॉक्टर ने तो बोला बढ़ नहीं सकता है. मैंने कहा हो सकता है, जब उन्होंने पहले स्कैन किया हो तो उनको मार्जिनल एरर, उनकी रिकॉर्डिंग में एरर हो. जिसने अल्ट्रासाउंड किया, उसने जो असिस्टेंट डाल रही है उसने एक गलती से, 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है फॉर एनी वन टू यू नो तो आई टोल्ड सागर आई डोंट नो हाउ इट वर्कड, बट इट वर्कड. दैट इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग कि नहीं, एफर्मेशंस काम करते हैं. एंड बी स्पेसिफिक टू वॉट यू वॉन्ट, राइट? मैं बोल सकती थी कि मेरी रिपोर्ट अच्छी है, मेरी रिपोर्ट अच्छी है. अब अच्छी रिपोर्ट दूसरे एस्पेक्ट में भी हो सकती है. हो सकता है सर्विस लेंथ अच्छी नहीं है पर दूसरी चीज अच्छी है. सो या दैट मीन्स सेट कि आस्क एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. जैसे बेना मासी ने शेयर किया था, उन्होंने अमाउंट भी एग्जैक्ट लिखा था. तो नहीं नहीं करके भी वही सच हुआ कि यूनिवर्स तो वेट कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है, आपने उसको खाली विजिबल कर दिया. बोलते ना, उस पे पर्दा लगा हुआ है, आपने खाली पर्दा हटा दिया. दैट पर्दा हटाना एक्ट आपका बिलीफ है. दैट इज योर फेथ, दैट इज व्हाट यू हैव टू इमेजिन. यस दृष्टि, यू कैन कंटिन्यू. Prop yourself up. Whenever you permit yourself to think what persons, things, conditions, or circumstances may suggest, you are not following what you want to think. You are not following your own desires but borrowed desires.
Use your imagination in determining what you want to think or do. When using the creation process, use all the props you can to generate the feeling that you have what you want already. Surround yourself with items of clothing, picture, photographs, or relevant objects so you can imagine and feel the feeling of having what you want. If you want new clothes, make sure you have space in your wardrobe with empty clothes hanger ready for your new clothes. If you want to bring more money in your life, does your wallet have space for money or is it full of irrelevant bits of papers? If you want the perfect partner, you must imagine and feel that person is with you now. Are you sleeping in middle of your bed or are you sleeping on one side because your partner is on the other side of the bed? If your partner were with you now, you would be using only half the space in your wardrobe because your partner's clothes would be in the other half of the wardrobe. Do you set your table for two people or one person? Just putting out an extra place is something you can easily do. Do your best not to contradict your desires in your day to day action and instead use the world of props that surrounds you to feel as though you already have what you want. These are simple little things you can do with props and your imaginations, but they are incredibly powerful. Thank you, Drishti. So they say whenever you permit yourself to think what persons, things, conditions, or circumstances may suggest, you are not following what you want to think. You are not following your own desires, but borrowed desires. Use your imagination in determining what you think or do. सो कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, हम सोचते हैं कि शायद मुझे ये चाहिए। खासकर अगर आप याद करोगे ना, कॉलेज डेज में हमेशा ऐसा होता है कि हाँ अच्छा, हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, विच करियर दे वांट टू फॉलो, देन ऑफ कोर्स यू आर जस्ट डूइंग योर इंक्वायरी, राइट? बट देर आर टाइम्स व्हेन यू आर ऑल्सो ब्लाइंडली फॉलोइंग बिकॉज ओके, XYZ पर्सन इज डूइंग दिस। सो दिस इज सेइंग दैट कि किसी और के ड्रीम्स आपके ड्रीम्स नहीं है। आपके ड्रीम्स, यू इमेजिन व्हाट यू वांट, एंड मे बी दे आर इवन, अदर पीपल आर लिमिटिंग देयर इमेजिनेशन। आप शायद इमेजिन करने जाओ, आप उससे कहीं ज्यादा भी इमेजिन कर लोगे अपने लिए, व्हाई नॉट? यू नो, दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम माई किड्स। माई यंगर वन इज 2 years ओल्ड, वीर। तो जिस तरह कभी कभी वो लोग चीजें करते हैं ना, मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ कि उनके लिए मतलब फिजिकल बैरियर्स भी बैरियर्स नहीं है। वो लोग जिस स्पीड में कभी कभी दौड़ते हैं, मेरे को लगता है अरे वो उसको कॉर्नर लग जाएगा, पर वो ऐसे बेंड, मैट्रिक्स स्टाइल बेंड करके चला भी जाएगा। मेरी इमेजिनेशन में इसको शायद लग रहा है, पर उनकी इमेजिनेशन को वो दिखता भी नहीं है। लाइक वी आर लिमिटिंग आवर इमेजिनेशन। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे फियर्स, हमारे दूसरे फ्रेंड्स के ओपिनियन, बड़ों की ओपिनियन, रिश्तेदारों के ओपिनियन, XYZ, बहुत सारी चीजें, मूवीज, जो भी हम डेटा लेते हैं, सब हमारी लाइफ में हमारा ओपिनियन बनाते हैं, हमें इम्पैक्ट करते हैं। बट वो बोलते हैं ना, तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, दैट यू नीड टू बी क्लियर ऑफ। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू लव डूइंग, जो करने में आपको अच्छा लगता है। When using creation process, they're saying use all the props that you can use, to surround yourself with that, pictures हुए, जैसे मैंने वो फोटो बोला कि ड्रीम हाउस आपने इमेजिन कर दिया, आज तो देर आर सो मेनी फोटोज आउट देयर विच यू कैन यूज। जैसे नाउ भावना है सजेस्टेड, शी वॉज यूजिंग ChatGPT टू इमेजिन समथिंग इन अ सर्टन वे। तो देर आर सो मेनी things we can use as tools to imagine what you already want, right? They have given an example, for example, if you want new clothes, make sure you have space in your wardrobe with empty cloth hanger ready for clothes. You want to bring more money into your life, does your wallet have enough space? This reminds me of something, for the longest of time I have always, मेरे पास वॉलेट में कभी शायद नहीं भी होगे ना पैसे, तो भी मैं हमेशा बोलती थी यार चलो यार बहुत पैसे है लाइफ में। तो
जब मैं वो बोलती थी ना तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलती थी कि ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट सेइंग इट कि टू मेक समवन फील बेटर, कम ऑन लेट्स गो आउट टू ईट समथिंग, मैं इस वजह से बहुत पैसे है। एंड आई एम टेलिंग यू, आधा टाइम तो मैं अपना वॉलेट कैरी भी नहीं करती थी। कुणाल होता था तो मैं बोलती थी कुणाल के साथ जा रही हूँ, मेरे को क्यों कैरी करने के, घर के ही पैसे हैं, उसके पास जो पॉकेट में है वही मेरे पास में, कितनी बार मैं कैरी नहीं करती थी। कभी कभी ऐसे होता था कि हम कहीं अटक गए हैं, किसी और ने आपके लिए पे कर दिया। कभी कभी ऐसे होता था कि जैसे लाइक भावना इट सेड समथिंग ऑन डिस्काउंट, राइट, कि आप इमेजिन जितने आपके पैसे में उतना आपका काम हो जाता है। तो आप, मैं बोलूँ अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मुझे उसकी कमी नहीं लगती है, राइट। अभी भी मैं वॉलेट नहीं कैरी करती हूँ, अभी मैं, अब सागर है तो आई डोंट कैरी माई वॉलेट, राइट। बट गिवन एनी डे, आई एम नॉट किडिंग, सागर और कुणाल के वॉलेट से ज्यादा मेरे वॉलेट में पैसे होते हैं। बट आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट, अरे टेंशन नहीं लो यार, बहुत पैसे हैं, क्या चाहिए, चलो लेट्स गो, वील गेट इट, राइट। एंड यू थिंक I've learned that from you. Like, I think each moment, अरे बहुत पैसे है यार, चल करते हैं. And I think it is truly कभी नहीं लगती है beautiful. ना। Thank you. ट्रू। सो नेक्स्ट स्टोरी जो आगे की आ रही है, दैट्स कमिंग फॉर भावना ओली। कुणाल ने अब अपने कबर्ड में पहले से ही आधे कपड़े रखे थे, क्योंकि उसको पता है कि भावना के पास बहुत कपड़े हैं, तो वी गोना नीड दैट स्पेस, राइट। So this when Drishti was reading also and I'm like, हाँ कुणाल always had limited clothes. Now it makes sense why. And मैं उसको बोलती थी, कुणाल तू वही 4 टी-शर्ट पहनता है, कलर फेड हो गया है, नई जीन्स खरीद। एंड ही यूज टू ऑलवेज से कि मेरी इतनी ज़रूरत है, उतने मेरे पास कपड़े हैं, उसमें मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। तो आई एज अ सिस्टर, मुझे हमेशा, और मुझे बॉयज़ की शॉपिंग करना बहुत पसंद थी, तो आई ऑलवेज यूज टू बाय क्लोथ्स फॉर हिम। And like he used to tell me, why are you buying it, I don't need it, I don't want it, and he used to still like it and wear it, that is secondary. But कहने का मतलब, he always had that space ready for someone to walk in his life and use that wardrobe space. तो वो लोग वही शेयर कर रहे हैं स्टोरी कि इमेजिन इफ यू वांट अ पार्टनर, कि आप प्रॉप्स कैसे यूज कर रहे हो, राइट। कि आपने उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा रख दी कि ठीक है मैं अपने पार्टनर के साथ खाना खा रही हूँ, यू आर यूजिंग दैट एज अ प्रॉप। आप बेड पे सो रहे हो तो क्या आप बेड पे पूरा फैल के सो रहे हो, जैसे आप अकेले सो रहे हो, कि आप इमेजिन कर रहे हो कि नहीं बाजू में भी कोई सो रहा है मेरे, एज अ लाइफ पार्टनर यू वांट, सो कीपिंग दैट स्पेस फॉर दैट पर्सन, राइट। So that is what they're telling in the story, right? Ki use that props which we have in our day-to-day life. First, imagine what you want in life, then use those daily props, which is जो आपकी लाइफ को इंटरप्ट नहीं करते, विच इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, blend it in casually in your life. But these are simple little things you can do with props and your imagination, but they are incredibly powerful because we don't know what will work for us, right? So might I when बोलते हैं ना, when you don't trust yourself, भगवान पे छोड़ दो कि नहीं होगा ही, 100% होगा ही। Yes, दृष्टि, you can continue. One woman used prop and her imagination to receive a horse. She had wanted a horse all her life, but she could not afford to buy one. She wanted a chestnut Morgan gelding, and a Morgan would cost thousands and thousands of dollars. So she imagined seeing the exact horse she wanted each time she looked outside her kitchen window. She put a picture of Chestnut Morgan horse on the screen of her laptop computer. Whenever she had the opportunity, she doodled drawings of the horse. She began looking at the horse for sale, even though she couldn't afford them. She took her children to a store and together they tried on riding boots. She looked at saddles. She bought the only thing she could afford, a horse blanket, lead and horse brushes, and she kept them on. And she kept them on display so she could see them every day. Sometimes later, the woman went to a horse expo in her town. A raffle was being held at the expo, and the first prize was a chestnut Morgan gelding, the exact same horse she had been imagining. And of course, she won the raffle and she received her horse. Your senses are props too. So use all your senses to help you feel that you have what you want.
Feel the touch of what you want with your skin. Taste it, smell it, see it, and hear it. One man worked with all his senses to bring himself multiple job offers. He had applied for 75 positions over 3 years and had not received a single job offer. But then he used his imagination and all his senses to imagine he had his dream job. He imagined every detail in his new office. He touched the keys of his computer in his imagination. He smelled the lemon scent of the furniture polish on his new huge mahogany desk. He imagined his work colleagues. He gave them names. He had conversations with them. He had meetings with them. He even tasted the tacos at the lunch break. 7 weeks later, he began receiving requests for interview. Then requests for second interviews poured in. Then he received not only one fantastic job offer, but two. He accepted the job. He loved it the most. It was his dream job. Know that when you have completed your part in the creation process, creation is done. You are no longer in the old world where you didn't have what you wanted. You have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. Know that you will receive it. Thank you, Drishti. सो एज यू कैन सी उन्होंने दो स्टोरीज शेयर की है, राइट? कि पहली स्टोरी है जिसमें एक वुमन है, शी इज इमेजिनिंग अ हॉर्स, कि शी रियली बैडली वांट्स अ हॉर्स एंड दैट टू एक स्पेसिफिक हॉर्स उसको चाहिए जो उसके करंटली अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, राइट? तो व्हाट डज शी डू, कि वो ऐसा क्या करती है जिससे उसको वो हॉर्स मिले? उसको पता है कि वो हॉर्स बाहर खरीदने जाएंगे तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का है, राइट? सो वो इमेजिन करती है हमेशा कि मेरे किचन के बाहर वो हॉर्स है, एग्जैक्टली वही हॉर्स है। उसने लैपटॉप पे अपना वो स्क्रीन पेपर रख दिया है, एंड जब भी उसको टाइम मिलता था वो हॉर्स ड्रॉ करने जाती थी। इवन अगर वो समझो वो हॉर्स नहीं अफोर्ड कर सकती थी, पर उसकी कुछ चीजें जो अफोर्ड कर सकती थी परचेज करना, जो उसके ब्लैंकेट हुआ, उसके ब्रशेस हुए, तो उसने वो भी खरीद के रखा क्योंकि उसको पता था मुझे ये काम आएगा, बिकॉज इन हर माइंड शी बिलीव्ड कि आई मुझे वो घोड़ा मिलने ही वाला है। एंड एक बार वो जाती है एक हॉर्स एक्सपो में, एंड वहां पे एक रैफल हो रहा है। रैफल इज लाइक फंड रेजिंग होती है, जो लाइक लॉटरी टिकट जैसे आप बोलो। तो वहां पे एक रैफल हो रहा होता है ना, ऑब्वियसली वो इमेजिन जो उसने किया वो उसे हॉर्स मिल गया, राइट? जैसे बेना मासी ने वो स्टोरी शेयर की थी आईफोन वाली, एग्जैक्टली दैट, कि आप इमेजिन करो, आप जाओ, टच फील करो व्हाट यू वांट। तो व्हेन यू आर इमेजिनिंग, आपके सेंसेस उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। बोलते ना, हम कभी कभी हमारा विश्वास थोड़ा वेवर हो जाता है, बिकॉज जो भी हम इमेजिन करते हैं इट्स ऑल इन द माइंड, राइट? you're thinking there will come a reality, okay, okay, I'm just imagining, this is not real. That's again you're negating yourself, right? So just to constantly be positive is also difficult, right? That is what we are doing this right now, कि आज हम 1 घंटा every day, हम मॉर्निंग में वो 1 घंटा साथ में है, बिकॉज थ्रू आउट द डे जरूरी नहीं है हम 100% पॉजिटिव रहे। देर विल कम थॉट्स जो हमारे नेगेटिव है, चीजें कुछ होगी जो आपको वापस थोड़ा डिसबिलीफ में लेके जाएगी। बट विपासना में भी वो बोलते हैं कि डोंट फील गिल्टी अबाउट थिंकिंग नेगेटिव। आपका माइंड चला गया नेगेटिव चीजों में, ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्यार से वापस पॉजिटिव थॉट पे आ जाओ। डोंट फील बैड कि मेरा माइंड चला गया, अरे मेरा उतना टाइम वेस्ट हो गया, नहीं। प्यार से, डोंट हैव गिल्ट अबाउट इट। फील गुड कि आप एटलीस्ट वापस थॉट पे अपने वापस तो आ गए, राइट? सो यू हैव टू कीप यूज ऑल द प्रॉप्स। व्हेन यू यूज द प्रॉप्स ना, तो आपके सेंसेस उसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आप उसको और स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हो, आपके बिलीफ को और पावर मिलता है, राइट? तो वो स्टोरी में आपने देखा कि उसको हॉर्स जो उसको चाहिए एग्जैक्टली वही हॉर्स मिलता है। सो दे आर सेइंग यूज योर सेंसेस, दे आर योर प्रॉप्स। फील द टच ऑफ व्हाट यू वांट विद योर स्किन, टेस्ट इट, स्मेल इट, सी इट, हियर इट,
इमेजिन एवरीथिंग। जैसे उन्होंने वो ऑलिव ऑयल का एग्जाम्पल लिया, राइट, कि अगर आज आप इटली में जा रहे हो घूमने, यू आर हैविंग दैट पास्ता, तो इमेजिन यू आर ईटिंग दैट पास्ता। सिर्फ इमेजिन करने से अच्छा है यू स्मेल दैट ऑलिव ऑयल, मे बी यू ऑर्डर इन अ पास्ता एंड यू ऑल्सो हैव अ पास्ता, व्हाई नॉट, राइट? तो इमेजिन करो आप वहां पे हो, यस, बट ऑल्सो यूज थिंग्स एज प्रॉप्स विच विल हेल्प यू, कि आप और स्ट्रांगली इमेजिन कर सकते हो। फिर आप और एग्जैक्ट इमेजिन करोगे, अच्छा ये टेबल पे मैं बैठी हूँ, अच्छा ये कुर्सी है। द डीपर यू गो, इट्स अ गुड, यू नो कभी कभी रात को, पुटिंग किड्स टू स्लीप, आपने बच्चे के लिए गाना गा लिया, स्टोरी गा ली, बट अभी बच्चा फिर भी नहीं सो रहा है, तो दिस इज माय फेवरेट थिंग जो मैं खुद करती थी, मैं अपने बच्चों को भी वही बोलती हूँ। एक ड्रीम इमेजिन करना स्टार्ट करो, भले नींद नहीं आ रही है, नींद आएगी तो ड्रीम्स तो आने वाले। यू स्टार्ट योर ओन ड्रीम, जो तुम्हें आज रात को सपना देखने का मन है, वॉट एवर इट इज। अब बच्चे की लाइफ में तो क्या है, अभी आज सुबह वीर स्कूल गया, तो स्कूल के लिए वो सुबह उसको उठ के आया, ही वॉज क्राइंग एंड क्राइंग। मैंने कहा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो ही इज लाइक, मुझे ट्रैक्टर पे बैठना है। मैंने कहा ट्रैक्टर कहाँ से आया? तो देन ही टोल्ड मी रोते रोते कि मम्मा आप ट्रैक्टर चला रहे थे, मैं उस पे बैठा हुआ था। तो एवरी मॉर्निंग हमारे घर के बाहर है ना, जो गार्डन्स के और सब लीव्स गिरते हैं तो उसका झाड़ू लगता है, तो वो जो कचरा है वो हर मॉर्निंग ट्रैक्टर आता है, वो कचरा लेके जाता है। तो मे बी उसने वो इमेजिन किया सपने में, आई डोंट नो व्हाट, बट कि एक बच्चे का ड्रीम कुछ भी हो सकता है, राइट? सो व्हेन माय किड्स डोंट फॉल asleep, I tell them start your own dream and then see where you go, and of course in that flow we fall asleep, and that's also a good way to fall asleep. You're already imagining what you want to imagine, right? जैसा उन्होंने वो हॉर्स का एग्जाम्पल लिया, वैसे उसने एक और एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी है, उसने 75 जगहों पे अप्लाई किया फॉर 3 years। दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ कुणाल। उसने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई की, बहुत मेहनत की, बहुत खून पसीने बहाए, बट नो सक्सेस, राइट? जॉब नहीं आई। फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, व्हाट वी आर लर्निंग राइट नाउ, उसने डिसाइड किया मैं अपने सेंसेस यूज करूंगा टू इमेजिन व्हाट आई वांट। उसने अपने कंप्यूटर के कीज टच किए, अपने उसने टेबल टच करके इमेजिन किया कि ये एग्जैक्ट ये मैगनी वुड का मुझे टेबल मिला है, मेरे ये कॉलीग्स है, उनके साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, ये खाने पीने जा रहा हूँ, उनको नाम दिए, कॉन्वर्जेशंस की, उनके साथ मीटिंग्स की। उसने इवन टैकोस टेस्ट किए एट लंच ब्रेक। एंड 7 हफ्तों में उसको इंटरव्यूज आने लगे, फिर फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, एंड एक नहीं, उसको दो दो जॉब मिली, एंड ऑफ कोर्स ही चूजेस व्हाट विच जॉब्स ही लाइक्स द मोस्ट। सो आई रिमेम्बर, लाइक हम जब यूएस पढ़ने गए थे, मैं और कुणाल साथ में, एंड आई केम बैक एंड कुणाल वॉज रियली ट्राइंग वेरी हार्ड, ही वॉज अप्लाइंग फॉर अ lot of jobs. Kunal, you want to take that story? You want to tell how you got your success job? Yeah. Uh, uh, Suddenly offbeat, yeah, but yeah, I think so. I had money. It wasn't like I didn't have money. डैड तो हमेशा बोलते थे कि हाँ एंजॉय करके आओ, तुम्हें भेजा है कुछ एक्सपीरियंस करके आओ। बट आई डेंट वांट टू स्पेंड मनी। आई वाज लाइक कि मतलब आई वांट माय ओन मनी। भले आपके बैंक में है, इट्स देयर फॉर माय सेफ्टी, बट आई डेंट वांट टू टच मनी। एंड आई थिंक सो दैट वाज द मोस्ट I wouldn't say difficult because it was the most different kind of experience I had. मैं consultancies में रहा and all, and I wanted to make sure, मैंने बोला मैं यूएस आया हूँ, मेरे को खाली न्यूयॉर्क में जॉब चाहिए या कैलिफोर्निया में जॉब चाहिए, अदरवाइज आई एम नॉट डूइंग अ जॉब। एंड आफ्टर कंचू लेफ्ट एंड फिर दिन मेरे पास रेंटल अपार्टमेंट नहीं था। आई यूज्ड टू स्टे एट फ्रेंड्स काउच, तो काफी टाइम तक फ्रेंड्स के लिविंग रूम में सोता था। एंड देन आई मूव टू अ कंसल्टेंसी, फिर वहां पे सोता था, तो वहां पे रोज रात को आई यूज टू हैव लाइक बेड बग्स। तो बस मतलब वो एवरी डे आई यूज टू वॉश माई बेडशीट्स एंड ऑल एंड जस्ट होप कि मतलब तब तक हिट नहीं हुआ। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग बट आई व्हेन कंशु ब्रॉट दिस अप, आई सडनली हैड अ मतलब 5 मिनट्स पहले ही मुझे दिमाग में ऐसे आया था कि कि मे बी समटाइम्स वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर व्हाट वी वांट। पहले नेसेसिटी नहीं थी,
बट वो जब हार्ड हिट हुई, जब वो बॉटम आउट हुई, तब रियलाइज हुआ कि बस ये तो चाहिए। मतलब हमें ना बहुत बार, हमारे पास इतने ऑप्शंस है लाइफ में, क्योंकि हम अपने ऑप्शंस पे इतने डिपेंडेंट है कि अरे ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो हमारा कोई भी माइंड ऐसा फिक्स नहीं हो पाता कि मुझे यही ही चाहिए। बेनावासी का है, दैट्स वाई वो कन्विक्शन है, इसलिए उनको वो रिजल्ट्स मिलते हैं। बट लॉट ऑफ टाइम्स फॉर अस, वी हमारे पास आज के टाइम में इतने ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला कि जॉब नहीं है तो घर बिजनेस कर लेंगे और क्या, तो कभी भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। बट मैंने जब बॉटम आउट किया, मैं कंसल्टेंसी में रोज वो रोता था कि मेरे को अपनी जॉब चाहिए, मेरे को अपना ही चाहिए, एंड मेरे को कंसल्टेंसी से भी नहीं चाहिए, बिकॉज वहां पे वो थोड़ा थोड़ा फिस्टिशियस है। तो आई वाज लाइक मुझे मेरी ही जॉब चाहिए। वो ओनर किसी के साथ भी ऐसी डील नहीं करता है। मैंने डील का कंडीशन यही सेट किया, यू रन माई सैलरी, but only on one condition: if I score my job, which they don't allow to anyone, but if I score my job in meantime, so I will take my job, and whatever be your dues, I'll clear it. And मेरे को उनके यहाँ से भी जॉब मिली, बट luckily what happened, सेम टाइम पे I got two offers, and both were fantastic, but at the same time I got my offer first, एंड मुझे टाइम स्क्वायर पे ही जॉब मिली। एंड द ब्यूटी वाज, मेरे माइंड में यही था कि मुझे कुछ टाइम काम करना है, एंड मुझे वही मिला, कुछ टाइम का ही मिला, इन सेंस कि मुझे कुछ टाइम के लिए, मैंने बोला मेरे को टाइम स्क्वायर पे रहना है, मेरे को टाइम स्क्वायर पे ही घर मिला, मेरे बिल्डिंग के लाइक 5 मिनट्स वॉकिंग पे ही घर मिला। एंड मतलब बहुत बार लोगों का ड्रीम होता है कि वहां पे जाके रहना है एंड वहां पे जाके काम करना है, and I enjoyed both the phases. At the most, my company was in, मेरा actually registered office was in Connecticut, which was like 3 hours away. But मुझे specifically place किया गया in New York, in Times Square only, despite being my registered office being in Connecticut. So yeah, that was one of my most reminders in life कि you know ask what you want and be very very sure that that's there. Thank you, Kunal. So also that, but also I would like to brag कि मुझे याद है कि कुणाल, जो बाकी स्टूडेंट्स थे ना हमारे साथ, तो somewhere I feel like they had more technical background, or they were more likely to score a job, and a lot of them did. मैंने और कुणाल ने ग्रेजुएशन जल्दी कंप्लीट की, तो we had that कि टाइम फ्रेम कम था जॉब स्कोर करने का। तो मुझे याद है कि बाकी लोग ज्यादा क्वालिफाइड थे इन अ वे, सर्टन वे, लाइक स्किल्स वाइज, एंड कुणाल का टेक्निकल एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था, ही वॉज मोस्ट टेक्निकली स्ट्रांग देन एनीवन. So imagine anybody who's getting a new job, they get that salary bracket also 60,000 या 70,000 का कुछ मिलता था. And that वो टाइम पे कुणाल ने 100 का अराउंड उसने स्कोर सैलरी लिया. तो विच वॉज, उसके सारे फ्रेंड्स भी एकदम शॉक थे कि तेको इतना तूने वेट किया, इतनी मेहनत की. वो बोला बेड बग्स में सोया, खाना भी अच्छा नहीं था. कुणाल घंटों घंटे फेस टाइम करता था, एंड यू नो I used to just keep my phone on just for him to know कि okay I am here for you, and I used to do my things. कितनी बातें करता रहता था तो उसको लगता था मैं सुन रही हूँ, मैं कितनी बार नहीं भी सुनती थी. तो but that was very, in my opinion, what I have seen Kunal, that was a very difficult time for him to be away from people you love and to struggle, but that gave him that burning desire of what I badly want this. And like he said, एक ड्रीम होता है वर्ल्ड की बेस्ट सिटी में एंड बेस्ट प्लेस में काम करना एंड रहना भी. आई रिमेम्बर उसकी बॉस उसको फोन करती थी, कुणाल कहाँ है? इज लाइक हाँ मैं बस 5 मिनट में आया. ही यूज्ड टू जस्ट गेट डाउन इन द लिफ्ट एंड लाइक गो, एंड ही इज देयर. एंड आई एम लाइक ब्रो दिस इज सो परफेक्ट इन लाइफ. बट लाइक ही सेड कि उसने इमेजिन किया मेरे को थोड़ा टाइम ही करना है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही गॉट. एंड देन वन डे ही डिसाइडेड ओके आई वांट टू बी बैक, एंड नाउ आल्सो ही इज डूइंग वेरी गुड इन लाइफ. But it is truly inspiring, bro. So they say the last line of this chapter is, know that you will receive it. Don't just believe, know it. That has to be your knowledge. ये आपको
मानना ही है, ये आपका सच है कि मुझे मिलेगा ही. I'm also reminded, like, ये आ रहा था तब what Gaurav had also shared, like, during his Dubai days. मतलब, I think that was brilliant. मतलब, interview देखिए and got it लिखो and, getting those emails like, हाँ, already हो गया है. I think that's just incredible conviction, which we naturally tend to fall into. And if we just stay at it, it has to come. It has to happen. What I'm also getting present to is हम शादियां करते हैं, like हम बहुत सारे celebrations करते हैं. What these celebrations are about also कि अच्छा शादी successful होगी तो celebrate नहीं करेंगे. पहले तो लोग मिलते थे and to begin to before it starts we come together and we give good energies to one thing. We give it good vibe before it even fruitates. हमने anniversaries कम attend की है, but हमने शादी like the beginning with a celebration, with a bang, knowing कि ये अच्छा ही जाएगा. That is the intention that 100 people are coming and giving good energy and blessings. And that has to then multiply into more blessings and good energy. So this science of like, before getting it, celebrating, knowing कि ये अच्छा ही होगा, has always been with us. Points of power. To harness the force of love in your life, to bring something you want or change something you don't want, the creation process is always the same. Imagine it, feel it, receive it. Your imagination connects you to what you want. Your desires and feelings of love create the magnetism, the magnetic power drawing your desire to you. Imagine yourself being with your desire. At the same time, feel love for what you are imagining. Desire what you want with all your heart because desire is a feeling of love and you must give love to receive what you love. When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. In conversations and in your thoughts, say, imagine if, and then complete the sentence with what you want. Use props, surround yourself with items of clothing, pictures, photograph, and relevant object so you can imagine and feel the feeling of having what you want. Your senses are props too. Use all your senses to help you feel that you have what you want. Feel it, taste it, smell it, see it, and hear it. When you have completed your part in the creation process, you have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. Know you will receive it. Thank you, Drishti. सो दिस इज अगेन, ये समरी है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, राइट? तो ये चैप्टर था क्रिएशन प्रोसेस. अभी क्रिएशन प्रोसेस उन्होंने अगर हम 3 छोटे वर्ड्स में बोले हैं तो इमेजिन, फील, रिसीव. इमेजिन इट, कि आप ऑलरेडी इमेजिन करो ये हो गया, राइट? दैट इज समथिंग वी कैन डू विथ थॉट्स. यस. फील इट. सो व्हेन दे आर सेइंग फील इट, कैसे फील करेंगे? प्रॉप्स यूज करके, राइट? And once you are feeling it, you have given it that power, you will receive it, right? Receive it. So be open to receiving also. Sometimes वो बोलते हैं ना, maybe things are coming to you, but maybe you are not ready to receive it, so it's not coming to you, right? So you are the one who's, बोलते हैं, you get out of the way, you will anyway get it. It's coming to you. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power drawing your desire to you. So, this and the next is a सबसे strong thing which is there is love, which what Bhavdu said, time and again we are going to keep learning that in every chapter. That is the strongest feeling, right? Feeling love,
When you feel love, you automatically feel good, right? So that is the strongest power. I remember ki there are days and times, when I have felt so much love in life that I have even asked myself, is it even possible to feel so much? It feels so surreal. That is the love, obviously, I've gotten from my babies, but like, your heart expands. You feel getting that big, right? So when you feel that, so it is that strong feeling that it उसके पास वो feeling के पास वो power है कि वो love के पास जो power है is like magnet. It will get what you want. The magnetic power drawing your desire to you. Imagine yourself being with your desire. At the same time, feel love for what you're imagining. Don't just imagine it कि just for the sake कि अच्छा मुझे ये चाहिए. वो फ्यूल कहाँ है, टू गेट दैट टू यू, दैट फ्यूल, वो प्यार है. उसको प्यार दो, जितना दे सकते हो उतना प्यार दो. Desire what you want with all your heart, because desire is a feeling of love. You must give love to receive what you want, right? When you imagine anything positive that you want and love, you're harnessing the force of love. Push your imagination to the limits. Imagine the best and the highest that you possibly can of whatever it is that you want. जो हमने start किया, हमारी सोच ही हमारी सीमा है, right? What you want कि सिर्फ थोड़ा ही नहीं, मे बी आपको समझो x चाहिए, you imagine 2x, no? There is no बोलते हैं लिमिट टू दैट. इट इज अप टू अस कि हमें क्या चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए, किस अबंडेंस में चाहिए, वो भी हम चूज कर सकते हैं. Whatever you desire, you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. You can imagine it. It already exists in creation. जैसे उन्होंने बोला कि सारी पॉसिबिलिटीज, तो 9th सेंचुरी में ये भागवत ने बोला था, बट टुडे साइंस ऑल्सो बैक्स इट कि एवरीथिंग यू कैन पॉसिबली इमेजिन इज ऑलरेडी क्रिएटेड. तो वो ऑलरेडी है. ऐसा भी नहीं है कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ थिन एयर लाइक अ मजिशियन. वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है टू गिव इट पावर, टू मेक इट विजिबल टू यू. इन कॉन्वर्जेशंस एंड इन थॉट्स से imagine if, and then complete the sentence with what you want. Like, how we use dreams for our power, right? The same way you start your statement, आप मन में सोचो कि imagine ऐसा हुआ तो that is how that is your activity actually, that is what we can do. You imagine and then complete that sentence ki, okay, I want this, and of course, like I said, imagine the quantity also what you want. Like, don't limit yourself. ठीक है, मुझे थोड़े नहीं, मुझे बहुत सारे नूडल्स चाहिए, तो दैट इज व्हाट यू विल गेट, राइट? तो लाइक आई सेड, बेनामासी मेरा प्राइवेट जेट, ओके. Use props. Surround yourself with items of clothing. Oh, by the way, I do have a wallpaper of private jet. Huh? I will show it to you in a while. कि आप अपने फोन में ही वो रख दिया है, उसमें एक्चुअली ऐसा ही है कि एक वाइफ है, एक हस्बैंड है और उनके 2 बच्चे हैं. वो अपने प्राइवेट जेट के बाहर अपने बच्चे को गोदी में लेके. यू सीन माय वॉलपेपर, भावड़ू? जो हमें भी बिठा यार, थोड़ी हमारे लिए सीट्स रख. सीट्स है, डोंट वरी, सीट्स है. So, surround yourself with items of clothing, pictures, use photographs, relevant objects so you can imagine and feel the feelings of having what you want. Your senses are props too. Every sense is very powerful. Seeing it, जैसे wallpaper हुआ, smelling it, everything, tasting it, ये बहुत powerful actually props है, which we should use it. बोलते हैं ना, हमारे पास ये already tools exist करते हैं, हमें सिर्फ use करना है ताकि हमारी imagination और हमारा power which we are giving to the thought, जो चीज़ हमें चाहिए, वो और strong हो जाए. When you have completed your part in the creation process, you have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it. No, you will receive it. Yeah. Badu, you can continue. Thank you guys. मजा आ गया. So refreshing, so nice, so lovely. Thank you for
doing this today and hopefully many, many, many more days from here. Just a very, very warm hug to my heart. So thank you both of you for being here and for doing this and leading it so gently and beautifully. And we have few minutes and we will go over few minutes. Those who need to leave, we get it. Thank you all for being here. It's the end of the chapter. It's our chance. Okay, at least एक line, kuch और kuch. We won't go right now in shares, but something that you're taking back from this chapter or from so far, we can share and सबका share हो जाए. उसके बाद if a bigger share comes, we can take it. But just seeing time, we would love to hear from all of us what we are present to and what we are thinking. Thank you. And Kanchu, Drishti, me, all included. But small. I think this limitless thinking is something that's been, I think it came before also. So that's what I was thinking, that all limitations are put on me by myself. Like, अच्छा अगर तुम्हें ये करना है तो ये नहीं कर सकते. Why do we always have this if we're not? Like, why can't it be all of it? Yeah. So we never ask that question. I don't know why we don't do that. Great reminder. Thank you so much for sharing. Thank you. I think for me, similar to what Pariti said, but also one thing that Kanchu said, right? Like how your mother used to say that it's your dream, you have to dream it, right? Like no one else can, come and think of what you want. So I think that's one thing I'm kind of taking away. And also kind of we know what we want, it's just it's just about putting it out and imagining it and feeling it, as they say in the chapter. So, and I loved all the examples because it kind of helps make it real, right? Like, okay, now I'm stuck without job, but what do I do? So, or whatever, and I liked the examples also. So it helps a little bit on, okay, practicality, how do I take this forward? Thank you, Drishti. What I'm taking back is faith and also getting present to faith ke naam pe the other services I'm doing, and but also reminding ke chalo jo hua acha hua, and trusting the process. So I think that is my biggest take back with this. My takeaway from this is, like it's been an entire week, almost like few days, which I was unwell. Last week was quite a journey, and coming back into this and back into the zone when all the settings, and then to be that 1 hour together with all of you guys. And in today's chapter, rather, something specific is like, इमेजिन करना एक चीज होती है, बट वी हैव सो मेनी टूल्स टू आवर एक्सेस जो हम मिस आउट करते हैं, विच दिस चैप्टर वाज दैट रिमाइंडर कि यूज थिंग्स टू हेल्प एनहांस योर इमेजिनेशन. हाउ डू यू बोलते ना, डू समथिंग बट डू इट बेटर, फेल बट फेल बेटर, राइट? तो हाउ डू वी डू इट बेटर? Like you are already imagining it, so how they said, use those props, कि आप imagine करो आपके colleagues हैं XYZ XYZ, तो the tools definitely that helps. So my takeaway would be to keep reminding myself that there are these possibilities, and despite experiencing every one of us experiencing at a certain space in time, we might have experienced what we have wished and it has completed. But this everyday session is like a great start and a reminder that to keep the practice going in this day, to keep it going, and to take that uh, positive, approach to our wishes, and not like critically, keep it like poking it with the negative thoughts, and to clean it with the clear thoughts. And yeah, it will show up. Every one of us has experienced it in many ways. We might not remember it in our tough times, but yeah, that's what it reminds us today, being all of us together in this group, everyone sharing their experiences.
that every one of us has a certain experience, but we forget it in our tough times. And that's when we need it the most, that things will happen what we wish for, and hope to continue doing this for till the life is. So yeah. हाँ, मेरे को कंचू ने ये बहुत मस्त आइडिया दिया कि प्रॉक्स का जो स्क्रीन पे लगा सकते हैं, वो जो हम लोग खुद ही देख सकते हैं कि हम लोग को कभी ऐसा रहता है कि हम लोग का ड्रीम कुछ अलग रहता है और हम लोग को दूसरे को दिखाने का नहीं रहता है, तो वो स्क्रीन पे लगा सकते हैं। तो आज ही वो मैं करेगी, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कुणाल ने बोला था, कुणाल का जो एक्सपीरियंस उधर का जो मैनिफेस्ट वगैरह किया था, तो उसमें से मेरे को ये है कि यार ब्रेकडाउन तो आएंगे, मगर अपना जो विजन है वो नहीं छोड़ने का। तो ये मेरे को एक बहुत मतलब 2 एक्सपीरियंस मेरा बड़ा लाइफ में अभी ये मैं अप्लाई करेगी कि हाँ, ब्रेकडाउन तो आएंगे, तो थोड़ा ये डाउन नहीं हो जाने का। और अपने जो भी हम लोग ने जो चूज किया है वो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर डट के रहेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो मैं 2 अप्लाई और ज्यादा करेगी। और थैंक यू कंचू, और थैंक यू कुणाल ये समझाने के लिए। Thank you for sharing. Archana, are you there? Yeah, actually, thank you for the session. What I'm taking away today is that I'll put a picture of whatever I want to manifest. Like Kanchu was mentioning about the cervix length, right? I mean, she was putting affirmations or, even the jet plane that she was mentioning. So that is what today I'm taking away. Oh, very nice. Yeah, so I'm taking away that with me today. Thank you. Thank you for sharing. Gaurav, Yes. welcome. Good to see you. Yes, So, can you see me? of course. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, I'm telling you one thing. It is not कि क्या ये इतना ही आसान है कि सोचने से सब मिल जाता है. But if I tell you about my story, तो मैंने रियली जो सोचा था ना और जिसके लिए काम किया वो मिला. एंड मिलना डजंट मीन कि हमेशा आपको डिजायर्ड रिजल्ट ही मिलेगा. वो सिमिलर भी हो सकता है. मे बी it turned out to be a biggest mistake because you desired, you got it, but it turned out to be a good lesson. तो वो लेसन भी बहुत जरूरी था. बिकॉज क्या होता है कि कुछ साल के बाद आप रियलाइज करते हो कि ओके, वो चीज इसलिए हुई सो दैट आई शुड बी एट दिस सिचुएशन टुडे, दिस इज मच बेटर. सो वो जो रोड ब्लॉक था, जो डिजायर करा बट रिजल्ट नहीं मिला और उसका इतना नुकसान हो गया, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड मैजिक लेटर इन द इयर्स. वो एक जो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में आएगी, लाइक आई एम 42 नाउ, राइट. अब 20 22 23 साल के लोगों का एक्सपीरियंस और होगा. फॉर देम इट वाज लाइक इजी, यार चाहिए वो मिल जाएगा. हम उस स्टेज पे हैं कि अब हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें तरीका पता चल गया कि वो काम कैसे होगा. वाई? बिकॉज जो पास्ट ईयर्स की डिसअपॉइंटमेंट्स, एक्सपीरियंसेस और जो लर्निंग रही, उससे आपने कोड क्रैक कर लिया कि काम कैसे होता है. वो फोन पे वॉलपेपर लगा के भी हो जाएगा, वो एक पेपर पे लिख के भी हो जाएगा, वो एक सिंपल मीटिंग से भी हो जाएगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अर्ली एज से बात करूं, सो लाइक आई वाज 18 और 19, तो हम एक पार्टी में थे. तो मैंने, जो मेरी वाइफ शिल्प्रिया, तो मैंने उसको देखा. अभी आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी रिलेशनशिप और आई एम नॉट इनटू इट. आई एम लाइक ऑफिस जाओ, काम करो, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली, राइट. आई स्टार्टेड अर्ली वर्किंग, लाइक 18 और 19 ईयर्स में मैंने काम करना शुरू कर दिया था. एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल टू बॉम्बे, ये जोगेश्वरी, मलाड, ये सब इधर मैंने जाना, बिकॉज बिग बाजार वगैरह मेरे क्लाइंट होते थे. तो एक पार्टी में मैंने उसको देखा और वो पहली डिजायर आई लाइफ में. मे बी एक होता है टॉयज चाहिए, बुक, कपड़े चाहिए, ऐसा कभी नहीं मेरे को रहा, बिकॉज वो एक डिफॉल्ट प्रोसेस था, वो मिलता था. एंड माई जीजू यूज टू लव मी सो मच, एंड बाय 12-13 साल का जब मैं था, ही यूज टू गेट मी एवरीथिंग.
तो ऐसी कोई डिजायर नहीं आती थी कि टॉयज चाहिए या कपड़े। वो पहली बार डिजायर है कि, और मैं उसको देख रहा हूँ, नॉट एज अ विमेन, नॉट एज अ बॉडी, बट एक डिजायर एक मन में है कि यार ये चाहिए। और वो चाहिए के बाद बात खत्म हो गई, रात गई बात गई, राइट, मैं भूल गया और मैं काम पे लग गया अपने, बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रैवल बिटवीन अमृतसर एंड जलंधर। तीसरे दिन उसका कॉल आता है, कहां से नंबर ढूंढा उसने, कहां से देखा, वो वाइब कैसे ट्रांसफर हुई, राइट, इट वॉज अ मैजिक। मेरी लाइफ में ऐसे मैजिक भरे पड़े हैं। तो जब आप बोलते हो ना, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो ये सोचने की यार ये वाकई इतना आसान होता है क्या कि सोचेंगे मिल जाएगा। जैसे कंचू ने बोला मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, अब मुझे लग रहा है इनको मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा से पायलट बनना है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने किसी बंदे के पास प्राइवेट जेट आ जाएगा तो अपने पास पायलट बनने का रास्ता आसान होगा, नए नए बंदे को कौन नौकरी देगा। तो ट्रूली जोक्स अपार्ट, लाइफ पूरी मैजिक से भरी रही है, हमेशा जो सोचा है मिला है। आई टेल यू 23 ओके 22-21 को मैं दुबई आ गया, 27-28 ईयर्स ओल्ड। सो आई वेंट टू अ कार शोरूम। अब हमने कभी सोचा नहीं कि, अभी देखो, माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 2 months ओल्ड, सो वी वर अ जॉइंट फैमिली। तो मेरी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती थी, बिकॉज किसको आप शौक बोलोगे जाके, है ना, मुझे ये चाहिए ये चाहिए। सो आई वाज लाइक वेरी क्वाइट गुड काइंड ऑफ, हमें बच्चों से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, हमें आपस फैमिली में खेलो, बच्चों के साथ खेलो, अपना पढ़ो, बट डोंट गो टू एनी बैड संगति की, बाहर चले जाओ। तो 27-28 आई एम टेलिंग यू, मैं एक शोरूम में घुसा। शोरूम था ऑडी, विच आई नेवर थॉट कि आई कैन बाय, राइट, बट आई वॉन्ट टू बाय। कहाँ से आएगी कैसे आएगी आई डोंट नो। मैं उधर घुसा, मैंने कहा आई वॉन्ट टू टेस्ट ड्राइव। वो लड़का बोलता यस सर श्योर। ये दुबई की बात है। तो मैंने ना एक राउंड लगाया गाड़ी में, गाड़ी फील्स लाइक एरोप्लेन, इतनी सॉफ्ट स्मूथ हैवी, यू नो। मैंने बोला कैन आई टेक वन मोर राउंड, कहता यस। मैंने एक और लगाया। मैंने उसको बोला आई वांट टू टेक वन मोर राउंड, कहता यस। मैंने एक और लगाया। मैंने 3 राउंड लगाए गाड़ी के। मैंने जीजू को फोन किया, मैं कहा जीजू गाड़ी खरीदनी है, महंगी बहुत है, पता नहीं कैसे आएगी। तो उन्होंने बोला कि यार तेरे शौक है वो तू ही पूरे कर सकता है, राइट, तेरे शौक है तू ही पूरे करेगा। और मैं उसको बैठा हूं, मैं उसको बोल रहा हूँ यस आई वांट दिस कार। कहता आप स्टेटमेंट्स दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं देखता हूँ, बट वेटिंग 1 साल की है, स्पेशल मॉडल है किसी, तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। और मैंने कहा कि यार मिलनी नहीं है तो फायदा क्या है ना। कह रहा नहीं सर आप डॉक्यूमेंट्स दे दो, ठीक है बुकिंग कर लेते हैं, इट्स 5,000 दिरहम्स यू हैव टू पे, और बस बात हो जाएगी। और मैं बोल के चला गया। और तरीका मेरा ये है, मैं ना बोल के छोड़ देता हूँ, लाइक लीव इट ऑन डिवाइन, होना होगा तो हो जाएगा, आपके अंदर डिजायर आएगी। उसकी सेकेंड डे कॉल आती है कि वो जो शेख जिसने भी वो गाड़ी की थी, कहता वो बोलता है कि उसने कैंसिलेशन करिए करी है सर, अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी। मैंने कहा यस व्हाई नॉट। और सोचो तीसरे दिन वो मैं गाड़ी चला रहा हूं, और 3 दिन पहले मैं सिर्फ सोच रहा हूं। अरे इतने मैजिक भरे पड़े हैं, जब मैं आपकी बातें सुनता हूं मैं सोचता हूँ यार कि ये तो लाइफ ही मेरी पूरी मैजिक से भरी रही है। सो ये मेरा मैसेज बेसिकली उन लोगों के लिए था जो ये सोचते हैं कि यार इतना ही आसान होता है क्या, सोचो सोचो, सोचने से कैसे हो जाएगा, फिर तो सारी, बिकॉज सोचने से भी ज्यादा जरूरी है यू हैव टू लिव इन इट, लिव द ड्रीम। आप सिर्फ सोच नहीं सकते हो, आपको सोचने के बाद उसको उस तरीके से जीना भी है, सो दैट व्हेन यू वॉक टू ए क्लास ऑफिस यू शुड थिंक दैट आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू सच ट्राइब। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मार्केटर हूं और मैं जा रहा हूँ, यू हैव टू थिंक कि ये आप ही का ही ऑफिस है, ये असिस्टेंट बैठी है जो सामने, ये आप ही के लिए बैठी है, अंदर जो बंदा बैठा है अप्रूवल करने के लिए, यू आर इफ नॉट मोर देन हिम देन एटलीस्ट इक्वल। उसका अपना किंगडम है, आपका अपना किंगडम है। आपने डिजायर करी, छोड़ दी, मीटिंग करी, वापस आ गए, आपको आना होगा, रिप्लाई आ जाएगा, नहीं तो ऐसी डिजायर्स 2 3 4 5 है, कहीं से तो वो पूरी हो जाएगी। सो ये मैजिक ट्रूली काम करता है, बट आपको बोल के छोड़ देना है। इफ इट इज मेंट टू बी इट विल कम बैक टू यू। ये मेरा मैसेज आज का। थैंक यू। Lovely. We'd love to keep hearing, Gaurav. I think these stories are nourishing. We have to just see a rose at least 5-7 minutes we can keep for such stories, from all our lives and more from you also. Thank you Yes. for sharing. Thank Thank you all for being here. And thank you all for staying back. We end with the song
Sanjeev sending you acknowledgement, but we listen to you tomorrow if you're still present. And thank you all once again for being here, for opening your hearts to this, for sharing your stories and making this happen. See you all tomorrow. Good night. Thank you.